آج آئے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واز کے عنوان انہوں نے خدا سے دریافت نہیں کیا سے کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ جب مسیح آنسنگ ہونگ زمین پر تھے تو انہوں نے مندرجہ ذیل 4 اصولوں کی وضاحت کی تھی جن سے ہم سچائی کو سمجھنے میں مدد لے سکتے ہیں۔ پہلا، جتنا زیادہ ہم سچائی پر عمل کریں اتنا زیادہ ہمارے ذہنوں کی تجدید ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سچائی کو نہ صرف جاننا چاہیے بلکہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے اس کے مطابق اسے عمل میں بھی لانا چاہیے۔ دوسرا، جتنا زیادہ ہم سچائی پر عمل کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم خدا کو پہچانیں گے۔ تیسرا، اگر ہم سچائی پر عمل نہیں کرتے تو ہماری روحیں تاریک ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری روحانی حالت آہستہ آہستہ بگڑتی جائے گی اور ہم اپنے فہم سے محروم ہو جائیں گے، یہ نہ جانتے ہوئے کہ جب ہم اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں تو ہمیں کون سی سمت اختیار کرنی چاہیے۔ چوتھا، اگر ہم سچائی پر عمل نہیں کرتے تو ہم خدا کا بھی انکار کر دیں گے۔ انہوں نے ہمیں یہ 4 اصول سکھائے تھے۔ اسی لیے باپ نے کہا کہ ہمیں صرف سچائی کو جاننا ہی نہیں چاہیے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو یہ متعارف کروانا اور انہیں سکھانا بھی چاہیے۔ اس لیے باپ نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ سچائی کو جاننا اہم ہے لیکن اس پر عمل کرنا بھی اہم ہے۔ اس حوالے سے باپ نے ہمیں یہ اصول سکھائے تھے۔ پہلا، جتنا زیادہ ہم سچائی پر عمل کریں اتنا زیادہ ہمارے ذہنوں کی تجدید ہوگی۔ دوسرا، جتنا زیادہ ہم سچائی پر عمل کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم خدا کو پہچانیں گے۔ تیسرا، اگر ہم سچائی پر عمل نہیں کرتے تو ہماری روحیں تاریک ہو جائیں گی۔ چوتھا، اگر ہم سچائی پر عمل نہیں کرتے تو ہم خدا کا بھی انکار کر دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں گہرائی سے اپنے دلوں پر کندہ کرنا چاہیے۔ یہ اہم نہیں ہے کہ ہمیں بپتسمہ لیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے یا ہم نے کتنے عرصے سے سچائی میں ایمان کی زندگی گزاری ہے۔ چاہے آپ سچائی میں ایک طویل عرصے سے ہوں یا نہ ہوں، ایک بار جب آپ نے خدا کی سچائی کو سیکھ لیا ہے تو صیون کے ہر رکن کو سچائی پر عمل کرنے کے قابل ہونا چاہیے، جیسے یہ ہے۔ آج واز کے عنوان انہوں نے خدا سے دریافت نہیں کیا سے آئے ہم کتاب مقدس کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کا ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر ہم کھانا پکانا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ماسٹر شیف سے سوالات پوچھنے چاہیے، جیسے کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، میں وہ کیسے کر سکتا ہوں۔ ایسا کرنے سے کیا ہماری کھانا پکانے کی مہارت بتدریج بہتر نہیں ہو جاتی؟ نیز اگر ہم کسی نئی چیز کو جاننا چاہیں تو ہمیں کس سے سوال کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں علماء یا اساتذہ سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ ایسا کرتے ہوئے ہم وہ علم حاصل کریں گے جس کے ہم طالب ہیں۔ تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے جب ہمارے پیٹ میں درد ہو یا ہماری آنکھوں یا سر میں درد ہو، ہمیں کس سے پوچھنا چاہیے؟ ہمیں ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے، میرے سر میں اتنا درد کیوں ہے، میری آنکھوں کو کیا خرابی ہے؟ ایسا کرنے سے ہمارا مناسب علاج ہوگا۔ تو پھر ہمیں نجات اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے کس سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں خدا سے پوچھنا چاہیے۔ خدا سے پوچھے بغیر ہم ہمیشہ کی زندگی اور نجات کی راہ کو ہرگز نہیں جان سکتے۔ خدا نے کہا، آسمان کی بادشاہی اس زمین کی طرح ایک طبعی 3 سمتی جہان نہیں ہے بلکہ 4 سمتی اور حتیٰ کہ 5 سمتی جہان ہے۔ اس لیے اپنی مرضی سے معاملات کا فیصلہ نہ کرو۔ لہٰذا ہمیں صرف خدا کے کلام پر مشتمل خدا کی تعلیمات کو پہنچانا چاہیے اور لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے جس کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ پرانے عہد نامہ کے زمانے میں اکسیا بادشاہ خدا سے پوچھنے کی بجائے کسی اور دیوتا سے پوچھنے گیا۔ اس وجہ سے وہ پلنگ پر پڑا رہا اور بالآخر مر گیا۔ آئے دوسرا سلاطین باب 1 آیت 1 سے اس تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ باب 1 آیت 1، اور اخیب کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باغی ہو گیا اور اکسیا اس جھلملی دار کھڑکی میں سے جو سامریا میں اس کے بالا خانے میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا۔ سو اس نے قاصدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں۔ لیکن خداوند کے فرشتہ نے ایلیا تشبی سے کہا،
उठ और शाह सामरिया के कासिदों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इसराइल में खुदा नहीं जो तुम अकरून के देवता बाल-ज़बूब से पूछने चले हो? इसलिए अब खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। सो एलिया रवाना हुआ। नतीजे के तौर पर अगजिया बादशाह अपने पलंग पर से उतरने के काबिल ना रहा और मर गया। बाप आंसांग ने कहा, जितना ज्यादा हम सच्चाई पर अमल करें उतना ज्यादा हमारे ज़हनों की तजदीद होगी और हम उतना ही ज्यादा खुदा को पहचानेंगे। अगर हम सच्चाई पर अमल नहीं करते तो हमारी रूहें तारीक हो जाएंगी और हम खुदा का भी इनकार कर देंगे। हम देख सकते हैं कि अगजिया बादशाह पर इसका इतलाक कैसे हुआ था। चूंकि उसने सच्चाई पर अमल नहीं किया था इसलिए उसकी रूह तारीक हो गई और बाद में उसने ये कहते हुए खुदा का इनकार किया कि अकरून का देवता बाल-ज़बूब मुस्तकबिल को खुदा से बेहतर जानता है। इसलिए उसने ये कहते हुए कासिद भेजा, बाल-ज़बूब से पूछो कि मेरे साथ क्या होगा। खुदा इस सारी सूरत हाल को जानते थे और कहा, क्या इसराइल में खुदा नहीं जो तुम अकरून के देवता बाल-ज़बूब से पूछने चले हो? इस मंजर के जरिए हम देख सकते हैं कि खुदा को इसके बायस कितने अफसोस और कहर से गुजरना पड़ा। हमने खुदा बाप और खुदा माँ को कबूल किया है जो रूल कुद्स के जमाना में रूह और दुल्हन है। खुदा बाप और खुदा माँ इस जमीन पर हमारी निजात के लिए आए थे और अब निजात की राह को हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। हमें इस हकीकत को हरगिज नहीं भूलना चाहिए। मैंने सोचा, क्या कोई आसमान की अब्दी बादशाही में जा सकता है अगर वो खुदा के कलाम को सिर्फ इल्मी तौर पर जानता हो और उसे अमल में ना लाता हो? इब्लीस एक गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह किसी को ढूंढता फिरता है कि फाड़ खाए, और खुदा हमें एक खास सूरत हाल में डालते हैं कि आया हम सच्चे दिल से खुदा के तालिब हैं या नहीं। इस पर गौर करते हुए किताब मुक़द्दस क्या कहती है कि शैतान को शिकस्त देने का बेहतरीन तरीका क्या है? ये हमारे ईमान को मजबूत करना है। बाप की हमें बख्शी गई तालीमात में से एक ये है कि जो कुछ हमने सीखा है उसके मुताबिक अगर हम सच्चाई पर अमल ना करें तो हमारे दिल तारीक हो जाएंगे। चूंकि हमारी रूहानी आंखें तारीक हो जाती हैं तो हम बतदरीज अपना फहम खो देते हैं, और जब हम फहम खो देते हैं तो हम आखिरकार ईमान खो देते हैं। इसकी वजह यह है कि हम चीजों को मुसलसल दुनियावी नुक्ता नजर से देखते रहेंगे। यहूदियों के यसु को मसलूब करने की वजूहात में से एक यही थी। उनकी नजर में यसु कमजोर लग रहे थे। यहूदी ये तासुर नहीं देते थे कि वो कोई काबिल जिक्र काम कर सकते हैं। इसकी बजाय ये जाहिर हुआ कि सरदार काहिनों, आलम शरा और फरीसियों के पास किताब मुक़द्दस का गहरा इल्म था। उनकी नजर में उनके कलाम का इख्तियार यसु के कलाम के इख्तियार से ज्यादा जाहिर होता था। मेहरबानी से इब्तिदाई कलीसिया के जमाने के इन तारीखी वाकयात पर गौर करें। इस जमाने में जितना ज्यादा हम सच्चाई पर अमल करें उतना ज्यादा हमारे ज़हनों की तजदीद होगी। इसलिए हमें सच्चाई पर अमल किए बगैर महज ईमान नहीं रखना चाहिए। अगर हम अमल ना करें तो हमारे दिलों की तजदीद का कोई इम्कान नहीं है। नेज़ जितना ज्यादा हम सच्चाई पर अमल करेंगे उतना ही ज्यादा हम खुदा को पहचानेंगे। इसकी वजह यह है कि खुदा हमें अपनी कुव्वत का तजुर्बा करने का मौका देते रहते हैं। जैसा कि हम मुस्तदी से खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करते हैं तो क्या हमारे आसपास बहुत से मुजज़ाती काम जाहिर नहीं हुए हैं? चूंकि यहूदियों ने सच्चाई पर अमल नहीं किया था इसलिए उनकी रूहें तारीक हो गईं। और अगरचे यसु उनके सामने दुरुस्त थे पर उन्होंने अपनी बदकिस्मती का इजहार किया कि उन्हें अपने ख्यालात ज्यादा दुरुस्त लगते थे। हम कुज़ात की किताब बाब 7 आयत 1 की तरफ जाते हुए जारी रखते हैं। तब यरूबाल यानी जिदाउन और सब लोग जो उसके साथ थे सवेरे ही उठे और हिरोद के चश्मे के पास डेरा किया, और मिद्यानियों की लश्करगाह उनके शुमाल की तरफ कोहे मोरा के मुत्सिल वादी में थी। ये वो मंजर है जहां जिदाउन मिद्यानी फौज पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। जब हम बाब 6 पढ़ें
तो हम देख सकते हैं कि जिदाओं ने इसराइल के मुस्तकबिल से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात के बारे में कैसे दरियाफ्त किया। खुदा ने जिदाउन से कहा, अब तू जा और बनी इसराइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। जब खुदा पहली बार जिदाउन के पास आए तो वो बहुत आजिज था और कहा, ऐ खुदा, मेरा घराना इसराइल के घरानों में सबसे कमजोर है और मैं अपने खानदान में सबसे छोटा हूं। मैं कैसे ये काम कर सकता हूं? इसलिए खुदा ने जिदाउन को बहुत से मौजे दिखाए ताकि उसे यह बड़ा यकीन दिलाएं कि तुम यकीनन इसे पूरा कर सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके बाद से जिदाउन ने उस पर अमल किया जिसका खुदा ने उसे हुक्म दिया था। जिदाउन हमेशा खुदा से दरियाफ्त करता था और पुरफजल तौर पर उनकी तालीमात पर अमल करता था। जब वो खुदा की कही हर बात पर अमल करता था तो क्या खुदा ने आखिर में शानदार कामों को अंजाम देने में उसकी मदद नहीं की थी? अगर बनी इसराइल के सिपाहियों की बड़ी तादाद होती तो शायद वो सोचते हम जीत गए क्योंकि हमारे पास बड़ी फौज थी, या हम अपने बेहतर हथियारों की वजह से जीत गए। उस जंग का नतीजा खुदा ने पहले ही तय कर लिया था। फिर भी अगर सिपाही बहुत ज्यादा होते तो वो गलती से ये यकीन कर सकते थे कि उनकी बड़ी तादाद की वजह से वो कामयाब हुए हैं। इसीलिए खुदा ने कहा, इस सूरत में तुम बरकत नहीं पा सकोगे, अपनी फौज की तादाद कम करो। ऐसा करने से जब उन्होंने आखिरकार फतह हासिल की तो वो समझे कि ये वो काम है जो हम अपनी ताकत से पूरा नहीं कर सकते थे। यकीनन खुदा ने हमें ये फतह बख्शी है। ये वो तरीका है जिससे वो पहचानने के काबिल हुए कि ये खुदा के वसीले पूरा हुआ है। इसलिए खुदा ने जिदाउन को हिदायत दी कि तादाद कम कर दे। आयत 2 देखते हैं। तब खुदावन ने जिदाउन से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इस्राएली मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। सो तू अब लोगों में सुना सुना कर मुनादी करते कि जो कोई तरसान और हिरासान हो वो लौटकर कोहे जिलाद से चला जाए। चुनाचे उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए और 10,000 बाकी रह गए। यहां तक कि अगर वो 10,000 सिपाहियों के साथ लड़ते तो भी दुश्मन की फौज के सिपाही 1,35,000 थे। इसलिए ये 13.5 बमुकाबला 1 होता। जीतने के लिए हर इस्राएली सिपाही को 13 या इससे ज्यादा मुखालिफिन से मुकाबला करना पड़ता। ताहम खुदा ने कहा, तादाद अब भी ज्यादा है, इसे कम कर दे। नतीजतन तादाद 300 तक कम हो गई। इसके बावजूद जिदाउन ने खुदा से दरियाफ्त किया और जो भी खुदा ने उसे हुक्म दिया उसने हमेशा उनके हुक्म की तामील की और उनकी पैरवी की। खुदा की हिदायत पर अमल करते हुए जिदाउन एक हैरत अंगेज काम अंजाम देने के काबिल हुआ जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। 300 आदमी कैसे 1,35,000 आदमियों को शिकस्त दे सकते हैं? हमारे आम फहम से यह कारनामा नामुमकिन लग रहा था। ताहम आखिर में दुश्मनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया जिससे वो हलाक हो गए। मिद्यानियों के खैमे में ऐसा गैर मामूली नजारा था। मिद्यानी फौज के पास घोड़ों और ऊंटों समेत बेहतरीन हथियार थे। वो इस्राएलियों की निस्बत कहीं बेहतर हालात में थे। उनके सिपाहियों की तादाद भी ज्यादा थी। अगर इस्राएली उनसे सरेआम लड़ते तो उन्हें शिकस्त देना नामुमकिन था। लेकिन खुदा ने एक बहुत पुरस्कार वाकया रचाया। खुदा ने उसी रात तकरीबन सबके फनाह हो जाने का हैरानकुन तारीखी वाकया अंजाम दिया। यह फतह हतमी तौर पर जिस्मानी वाकयात से मुतलिक नहीं है, बल्कि खुदा इस बात पर रोशनी डाल रहे हैं कि हमारे ईमान के दायरे में रूहानी फतूहात कैसे हासिल हो सकती हैं। खुदा हमें इस असूल को उन वाकयात के जरिए रोशनास करवा रहे हैं जो इस मादी दुनिया में रूनमा होते हैं। अपने ईमान की जिंदगी में फतह पाने की गर्ज से हमें खुदा से दरियाफ्त करना और उनकी फराहम करदा रहनुमाई और हिदायत के मुताबिक काम करना चाहिए। हमें हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि रूहानी फतूहात यूं हासिल की जा सकती हैं। ये सिर्फ जिदाउन के बारे में नहीं है,
यशवा की तारीख में भी खुदा हमेशा उसके साथ थे। यरीहो शहर को फतह करते वक्त भी खुदा ने हमेशा इस्राएलियों को बताया कि क्या करना है और उन्हें फतह की राह दिखाई। ये सिर्फ दुनियावी जंग में फतह हासिल करने के मुतालिक नहीं था। खुदा ने ये तमाम इंदराजात छोड़े हैं ताकि ईमान के जरिए फतह के रास्ते पर चलने के लिए हमारी रहनुमाई करें। आज के वाज का उन्वान है, उन्होंने खुदा से दरियाफ्त नहीं किया। जो खुदा से दरियाफ्त नहीं करते वो खुदा पर ईमान नहीं रखते हैं। वो सब अहमक तरीन लोग हैं और वो उन लोगों से मुख्तलिफ नहीं हैं जो खुदा पर ईमान नहीं रखते। अगसिया बादशाह भी खुदा यहोवा पर ईमान रखता था, लेकिन उसने एक अहमकाना ख्याल को अपने जहन में आने दिया कि क्या बाल-ज़बूब खुदा से बेहतर नहीं है। यूं उसने खुदा यहोवा को बरतरफ किया और बाल-ज़बूब से दरियाफ्त करने गया। आखिरकार वो अपने पलंग पर से ना उतर सका और वहीं मर गया। उसने अपने आप को ऐसे बदकिस्मत नतीजे से दुचार किया। आइए यशवा की किताब का 6वां बाब देखते हैं। बाब 6 आयत 1 देखते हैं। और यरीहो बनी इसराइल के सबब से निहायत मजबूती से बंद था और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावन ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरीहो को और उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चलें। और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंके। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग निहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। और नून के बेटे यशवा ने काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि अहद के संदूक को उठाओ। और 7 काहिन मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे चले। और उन्होंने लोगों से कहा, बढ़कर शहर को घेर लो और जो आदमी मुसल्ला हैं वो खुदावंद के संदूक के आगे आगे चले। और जब यशवा लोगों से ये बातें कह चुका तो 7 काहिन मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के आगे आगे चले। और वो नरसिंगे फूंकते गए और खुदावंद के अहद का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और वो मुसल्ला आदमी उन काहिनों के आगे आगे चले जो नरसिंगे फूंक रहे थे और दुम्बाला संदूक के पीछे पीछे चला। और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और यशवा ने लोगों को यह हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। जब मैं तुमको ललकारने को कहूं तब तुम ललकारना। सो उसने खुदाम के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फिरवाया। तब वो खैमागाह में आए और वहीं रात काटी। यशवा को भी यरीहो शहर को फतह करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर वो सिर्फ तबाही सूरत हाल पर गौर करता तो दुश्मन जिस्मानी लिहाज से बनी इसराइल से कहीं ज्यादा बढ़तर थे। और यरीहो शहर बहुत मजबूत बनाया गया था जो एक इंतहाई काबिल दिफा खित्ते में वाक़ था। यशवा ने सोचा होगा हम कैसे उस शहर को फतह कर सकते हैं। वो मुकम्मल तौर पर उलझ गया होगा। ताहम उसने सोचा चूंकि खुदा ने कहा है कि यह दिया जाएगा इसलिए इसमें जरूर उनकी मर्जी मौजूद होगी। यशवा के जज्बात को जानकर खुदा ने उसे यरीहो शहर को फतह करने का तरीका सिखाया। खुदा ने उसे कहा, जंग का नारा मत लगाना और ना ही अपनी आवाजें बुलंद करना। सिर्फ दिन में एक बार यरीहो शहर के गिर्द चक्कर लगाना। 7वें दिन शहर के गिर्द 7 चक्कर लगाना और सारी फौज जोर से ललकारे। यशवा ने वैसा ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था। इसकी वजह यह है कि जब खुदा ने बहरे कुलजम को तकसीम किया था तो उसने इसका मुशाहिदा किया था। उसने यह भी देखा कि खुदा ने मिस्र में फिरौन को 10 आफतों से ज़ेर किया था। मजीद बना बियाबान में उसने देखा कि खुदा हर रोज आसमान से मन बरसाते थे जो एक बहुत बड़ी आबादी के खाने के लिए काफी था। 6ठे दिन खुदा ने उन्हें हफ्ते के दिनों की निस्बत दुगना मन बख्शा था। 7वें दिन हैरत अंगेज तौर पर मन मौकूफ हो गया और सब्बत के दिन कुछ भी ना दिया गया।
ऐसे शानदार वाक्यों को देखकर यशवा ने हमेशा खुदा की कुदरत को अपने दिल में कंधा किया। बाद में जब उसे यरीहो फतह करना था तो वो सोचने के काबिल था कि शहर यरीहो खुदा के सामने कैसे गिर सकता है। ऐसी फतह तक खुदा कैसे हमारी रहनुमाई करेंगे। खुदा ने यशवा का दिल देखा और उसे जवाब दिया। खुदा की तालीम के मुताबिक यशवा ने अपना कोई मंसूबा नहीं बनाया था, बल्कि जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, दिन में एक बार शहर के गिर्द चक्कर लगाया और 7वें दिन शहर के गिर्द 7 चक्कर लगाने के बाद सारी फौज ने जोर से ललकारा। तब खुदा ने यरीहो शहर के किला को ऐसे गिरा दिया जैसे ये खिलौना था। जब हम माजी में रूनमा होने वाले तमाम वाकयात पर गौर करें तो जब हमें किसी पेचीदा मसले या मुश्किल सूरत हाल का सामना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खुदा से दरियाफ्त करना चाहिए। जब बहरे कुलजम के सामने मिस्री फौज मूसा का ताकुब कर रही थी तो उसने किससे दरियाफ्त किया था? उसने खुदा से दरियाफ्त किया था। मूसा ने कहा, सब लोग उलझन में हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तब खुदा ने उसे राह दिखाई थी। खुदा ने पूछा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने जवाब दिया, ये लाठी है। अपनी लाठी उठाकर समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा, तब समुद्र तकसीम हो जाएगा और तू खुशकी देखेगा। जैसा कि इस मिसाल में है, ऐसा कोई मामला नहीं है जहां अंबिया खुदा से दरियाफ्त किए बगैर आगे बढ़े हों। इसके जरिए खुदा ने हमेशा उनकी रहनुमाई पुरफजलदार को की थी। एक और मर्तबा मरीबा में लोगों के पास अपने छुपाइयों के लिए पानी नहीं था। ऐसे मामले में मूसा के पास भी कोई हल नहीं था। क्योंकि वो अकेले बहुत से लोगों की प्यास नहीं बुझा सकता था, तो क्या उसे खुदा से दरियाफ्त नहीं करना चाहिए था? खुदा ने पूछा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने जवाब दिया, ये लाठी है, इसे चट्टान पर मार, तब इसमें से पानी निकलेगा। यूं बियाबान में 40 साल सफर के दौरान इस्राएली कदम ब कदम कनान की जानिब चले थे। खुदा के नबी हमेशा किसकी तलाश में रहते हैं? उन्होंने सही राह की तरफ जाने के लिए खुदा को ढूंढा, खुदा पर भरोसा किया और खुदा से दरियाफ्त किया। यूं बनी इसराइल दूध और शहद बहने वाले मुल्क कनान में दाखिल होने के काबिल हुए। किताब मुक़द्दस में उनकी तारीख दर्ज है। दूसरी तरफ अहमक लोग खुदा के तालिब नहीं हैं। यशायाह की किताब बाब 43 आयत 19 से देखते हैं। देखो, मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उसे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में इकरा और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताजीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगुज़ीदों के पीने के लिए हों। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। तो भी ऐ याकूब, तूने मुझे ना पुकारा। हमने क्या नहीं किया है? यह हकीकत कि हमने खुदा को नहीं पुकारा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमने खुदा को नहीं ढूंढा या उसे दरियाफ्त नहीं किया? तो भी ऐ याकूब, तूने मुझे ना पुकारा, बल्कि हमने क्या किया है? किताब मुक़द्दस में दर्ज है कि हम खुदा से तंग आ गए थे। ऐ इस्राएल, तू मुझसे तंग आ गया। बास कहते हैं कि काश अगर मैं खुदा को पहले ना पहचानता तो मैं दुनिया की लज्जत से भरपूर लुत्फअंदोज होता, और जब मौत आती तो इसका खात्मा होता। ताहम जब हम मरते हैं तो ये खात्मा नहीं होता है। लूका बाब 16 में क्या कहा गया है कि हम कहाँ जाते हैं? अमीर आदमी और लाजर की तमसील में हम जहन्नम नामी जगह देख सकते हैं। इसे ज़हन में रखना जरूरी है। हम इस ज़मीन पर महज दुनिया की चीजों से लुत्फअंदोज होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हत्ता कि इस सियारे के वजूद का एक मकसद है। मिसाल के तौर पर, क्या स्कूल का मकसद ऐसी जगह नहीं है जहां तलबा पढ़ सकें? इसी तरह जमीन उन फरिश्तों के इकट्ठे होने की जगह है जिन्होंने आसमान पर जुराइम का इर्तिकाब किया था। आसान अल्फाज में यही रास्ती मरकज की मानिंद हमारी रूहों का एक कैद खाना है।
زمین پر ہمارا سب سے اہم کام کامل توبہ کرنا ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں بہت سے لوگ اس سچائی سے بے خبر لاپرواہی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اڑتا رہے گا۔ ان کے اعمال کا نتیجہ یہ ہے جس کا سامنا انہیں ناگزیر طور پر کرنا پڑے گا۔ کیا خدا نے ہماری رہنمائی سچائی کی طرف کرتے ہوئے اور ہمیں ان پر ایمان لانے کی اجازت دیتے ہوئے ہم پر اپنے رحم اور شفقت کا مظاہرہ نہیں کیا؟ تاہم خدا کو پکارنے کے بجائے ہم نے کیا کیا؟ خدا نے کہا، اے اسرائیل، تو مجھ سے تنگ آ گیا۔ چونکہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے ہمیں سبت اور عیدوں کے ساتھ ساتھ صبح سویرے اور شام کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ یقیناً جو لوگ ایسی زندگی نہیں گزارتے انہیں قطعاً ایسے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا ہم اپنے مستقبل کی خاطر اس قسم کی زندگی نہیں گزار رہے؟ ہمیں ہرگز اپنا موازنہ ایسے لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی منزل ہماری منزل سے مختلف ہے، اس لیے عمل مختلف ہونے کا پابند ہے۔ تاہم خدا نے کتاب مقدس میں کہا، تو نے مجھے نہ پکارا اور مجھ سے دریافت نہ کیا، بلکہ تو مجھ سے تنگ آ گیا۔ ہم ایک بار پھر ان کلمات پر غور کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ سے پوچھ سکیں کہ ہمیں خدا کے سامنے کس گناہ کا اقرار کرنا چاہیے۔ پھر بھی داؤد جیسے لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ خدا کے طالب ہوتے اور انہیں پکارتے ہیں۔ معمولی سے مشکل میں بھی داؤد نے کہا، اے یہوہ، کیا آپ میرے چھپان نہیں ہیں؟ براہ کرم مجھے صداقت کی راہ پر چلائیں۔ پورے مزامیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد مسلسل خدا سے رہنمائی کا طالب رہا اور ایسے سوالات کرتا رہا کہ میں اسرائیل پر مناسب طور پر حکومت کرنے کے لیے کیا کروں، اور میں اپنے دشمنوں کو کیسے شکست دے سکتا ہوں۔ ہر تحقیق کے لیے خدا نے اسے جواب دیا اور طریقہ بتایا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ خدا کی بخشی اس ہدایت پر چلنے سے داؤد نے اپنا نام اسرائیل کے عظیم بادشاہوں میں سے ایک کے طور پر مشہور کیا تھا؟ آئیں زبور باب 121 سے دیکھتے ہیں۔ خدا کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں جو ان سے زیادہ حکمت اور بہتر راہ پیش کرتا ہو۔ ہم باب 121 آیت 1 دیکھتے ہیں۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک کہاں سے آتی ہے؟ خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ زبور نویس ہمیشہ سوچتا تھا، جب بھی میں کچھ کرتا ہوں تو ہمیشہ مجھے مدد ملتی ہے جو کہ اندیکھے جہان سے آتی ہے، یہ آدمیوں کی طرف سے نہیں ہے۔ میری مدد کہاں سے آتی ہے؟ بعد میں وہ سمجھا کہ اس کی مدد ہمیشہ خدا کی طرف سے آتی ہے۔ اس کے بعد سے وہ کیسے خدا سے دریافت کرنے سے روک سکتا تھا؟ حتیٰ کہ داؤد کے بادشاہ بننے کے بعد بھی اس نے ہمیشہ خدا سے رہنمائی طلب کی۔ بادشاہ بننے سے پہلے داؤد اپنے حال اور مستقبل کی زندگی کے لیے مسلسل خدا سے مشورہ کرتا تھا۔ اس کی کہانی محض کتاب مقدس میں درج ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ عکس کے طور پر کام کرتی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنی ایمان کی زندگی میں فتح کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس زمانے میں روحانی فتح کے لیے کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ کیا ہمیں اس عکس سے درست طور پر یہ معلوم کرنے کے قابل نہیں ہونا چاہیے کہ حقیقی دنیا یعنی ایمان کی دنیا میں کیا ہے؟ ایسا کرنے کی غرض سے کیا ہمیں ہمیشہ خدا سے پوچھنا اور ان سے دریافت نہیں کرنا چاہیے؟ جب ہم نے خدا سے اس زمانے میں ہمیشہ کی زندگی اور نجات کے معاملے کے بارے میں دریافت کیا تو خدا کا کیا جواب تھا؟ خدا نے ہمیں جواب دیا کہ جو ابن آدم کا گوشت کھاتا اور اس کا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن زندہ کروں گا۔ تاہم کیا دنیا آج واقعی اس کلام کی پابندی کر رہی ہے؟ وہ سننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، وہ اسے اہم نہیں سمجھتے ہیں، وہ خدا کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے۔ بس ان کے نتائج پہلے ہی طے کیے جا چکے ہیں اور اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ دوسری طرف کیا آپ باپ اور ماں کی تعلیمات کے مطابق سیون نہیں آئے، سیون میں پاک عیدیں نہیں منائیں، سبت کا دن نہیں منایا اور خدا کے قائم کردہ تمام آئین و ضوابط اور قوانین پر عمل نہیں کیا؟ ہم وہ ہیں جو روح اور دلہن کی تعلیمات پر
वफादारी से अमल करते हैं। आए लूका बाब 6 आयत 40 की तरफ जाते हैं। बाब 6 आयत 46, जब तुम वो किस पर अमल नहीं करते, मेरे कहने पर अमल नहीं करते, तो क्यों मुझे खुदावन खुदावन, खुदावन कौन है? ये खुदा है, तो क्यों मुझे खुदा खुदा कहते हो? वो अपने मुंह से खुदा को पुकारते हैं, ताहम वो खुदा के हुक्म की फरमाबरदारी नहीं करते। इसलिए खुदा पूछते हैं कि जो मैं कहता हूं तुम वो क्यों नहीं करते। आयत 47, जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जिताता हूं कि वो किसकी मानिंद है। वो उस आदमी की मानिंद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोदकर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता, वो उस आदमी की मानिंद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फिल फौर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। आज हमारे कलीसिया रूह और दुल्हन पर ईमान रखती है और उनकी रहनुमाई की पैरवी करती है। जिस राह पर वो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं वो मुस्तकबिल में हमारी निजात का रास्ता है। हम इंसान मुस्तकबिल को देखने के काबिल नहीं हैं। शायद हमें अपने ख्यालात या मंसूबे माकूल और काबिल फहम लगें, लेकिन अक्सर पोशीदा मंसूबे हमारा इंतजार कर रहे होते हैं जो हमारी रूह की हलाकत का बायस बन सकते हैं। यशवा, जिदाउन, मूसा और दाऊद के बारे में सोचें, जिन्होंने खुदा की तालीमात की पैरवी की और उनके कलाम की फरमाबरदारी में आगे बढ़े। उन्हें किस किस्म का नतीजा मिला था? क्या वो बाबरकत जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं थे? यसू ने कहा, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। अगरचे उन्होंने खुदावंद खुदावंद कहा, पर यह सिर्फ उनके झूठे मुंह और फरेबी जुबानों से था और उन्होंने अपने दिलों से कबूल नहीं किया था। बस खुदा के कहने पर अमल नहीं हुआ। इसीलिए बाप हमें सिखाते हैं कि जितना ज्यादा हम सच्चाई पर अमल करें उतना ज्यादा हमारे जहनों की तजदीद होगी और उतना ही ज्यादा हम खुदा को पहचानेंगे। अगर हम सच्चाई पर अमल नहीं करते तो हमारी रूहें तारीक हो जाएंगी और हम खुदा का भी इनकार कर देंगे। जो लोग खुदावंद खुदावंद कह रहे हैं लेकिन खुदा के कलाम की पैरवी नहीं करते, वो जोहर में उनका इनकार कर रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जिनकी रूहें तारीक हो रही हैं। आज हम एक बार फिर अपने दिलों पर कंधा करें कि क्यों हमें खुदा से दरियाफ्त करना और उनकी राह पर चलना चाहिए जिस पर चलने का हुक्म खुदा हमें देते हैं। इस हवाले से क्या हमने खुदा के कलाम की नाफरमानी का गुनाह नहीं किया था? क्या हमने ये सोचते हुए बेवकूफी नहीं की कि हमारे ख्याल खुदा के ख्यालों से बुलंद हैं? अगरचे हमने खुदा को पुकारा, पर क्या हमने उनके कलाम की नाफरमानी करने का गुनाह नहीं किया? आए एक बार फिर पीछे मुड़कर देखें और आखिर तक रास्तबाजी की राह पर चलने का अहद करें ताकि हम आसमानी खानदानी अराकीन बन सकें जो हमेशा की जिंदगी और निजात हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का वाज खत्म करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया।